Hello young physics learner, welcome back to my class. This is Bhavna physics class and today I am going to explain you a very new and very modern topic, that is solid state electronics. It is the most advanced and vast topic, and the introduction is given in your syllabus for class 12 physics. But before that, I want to ask you one question. Have you ever seen the kind of television you are going to watch in this video, and the kind of television you have been watching in your house? So you must have to find out the difference between the two. Okay, so if you are able to find out the difference between the two, then you are able to understand solid state electronics. So here, have a look. So in this video, you have seen that the television which was used earlier in old days, that television was somewhat of broader width, and that means what? It is made up of CRT, cathode ray tube. Okay, CRT means cathode ray tube. So cathode ray tube is a vacuum tube. In that electronics we use vacuum bulb, and the CRT is kind of that bulb only. So you have to, that means you can see that the width of the television is very large, because the back side is made by the tube, and there is a Y motion of the signal and a X motion of the signal. By that way the whole pictures that is visible on your screen. So that was the old television, but nowadays we are using the two kind of television. One is LED and second is LCD. And one more, now the latest television is plasma. So means what? Like LED means what? Light emitting diode. It is based on solid state electronics. LCD, liquid crystal display. Again, this kind of television is based on solid state electronics. It is an array structure, and this array structure is made up of the semiconductors. Now the plasma is also the liquid form of the screen, that behind the screen there is a liquid form of the jelly like structure of the semiconductor material, and that kind of television is called plasma. Okay, plasma, you know that universe में plasma भी present है. So that plasma is the somewhat jelly like structure. It is the liquid structure, and the particles, the charged particles can move from one place to other place in that liquid, in that plasma. So that kind of television is called plasma television. तो हमारे देखो एडवांस, जो आप ये कह लो कि एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ से, किस बेस से स्टार्ट हुई? दैट इज़ द CRT. ये वैक्यूम बल्ब के बेसिस पर था, जो एक बेस, जिसको हम वैक्यूम बल्ब कहते हैं, एक बेस फिज़िक्स था. इसमें जो मटेरियल्स यूज़ होते थे और उसके बाद जो उनके टर्मिनल्स बनते थे, दैट आर डायोड एंड ट्रायोड. तो डायोड बल्ब होते थे, ट्रायोड बल्ब होते थे. दैट आर नॉट लाइक द बल्ब हियर. उसके अंदर एक हीटिंग प्लेट होती थी, कैथोड प्लेट, तो एनोड प्लेट और कैथोड प्लेट होती थी. और वो बल्ब की रिक्वायरमेंट क्या थी कि उस बल्ब के अंदर वैक्यूम होना चाहिए. ये जो नॉर्मल बल्ब होता है, इसके अंदर वैक्यूम नहीं होता, इसके अंदर गैस होती है, एक इनर्ट गैस यूज़ होती है इसमें. बट जो वैक्यूम बल्ब होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होते थे पहले, उसमें वैक्यूम होना चाहिए, इसीलिए उसे वैक्यूम बल्ब कहा जाता है. दैट इनसाइड द बल्ब देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ एयर और डस्ट पार्टिकल्स. तो उसके अंदर वैक्यूम जनरेट करने के लिए उसका जो मेंटेनेंस था और उसकी जो कॉस्ट थी, द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, तो वो जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थी, दैट वाज वेरी हाई एंड द मेंटेनेंस इज़ वेरी एक्सपेंसिव. तो इस बेसिस पर यहाँ से एडवांस टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई, और हमने एक बहुत ही एडवांस मटेरियल को फाइंड आउट किया, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स को
एक मॉडर्न सिनेरियो दे सकता था, एंड दैट मटेरियल इज़ कॉल्ड अ सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो उसके बारे में हम ये सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स में कंप्लीट स्टडी करेंगे, एंड वो कंप्लीट स्टडी एक बेस है अभी इलेक्ट्रॉनिक्स का। उसके बाद आपका मॉडर्न टेक्नोलॉजी जब आएगी तो इसी बेस के ही बेसिस पर आप उस मॉडर्न टेक्नोलॉजी को, इलेक्ट्रॉनिक्स को आप अंडरस्टैंड कर पाओगे, जिसमें इंटीग्रेटेड यानी आईसी सर्किट आते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स जिसे कहा जाता है आईसी, एंड इसमें आप VLSI, MLSI, ओके, एंड LSI, सो ये सारे काइंड के आप टर्मिनल्स पढ़ोगे। तो वो टर्मिनल्स पढ़ने के लिए आपको सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स पहले बेस पढ़ना है, जिसमें आप अगेन जैसे इसमें ट्रायोड, वैक्यूम बल्ब में ट्रायोड या डायोड होता था, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हम ट्रायोड बनाएंगे, डायोड बनाएंगे। ट्रायोड को हम ट्रांजिस्टर कह देते हैं, एंड डायोड इज़ डायोड ओनली, ओके। तो इसमें हम लाइक PN डायोड, NP डायोड, इस तरीके के डायोड्स को हम पढ़ेंगे, और उसका सर्किट, ठीक है, इन डायोड्स को हम किस सर्किट में यूज़ करते हैं, दैट इज़ द एप्लीकेशन वी विल स्टडी। तो उससे पहले हमें पढ़ना है कि वो मटेरियल जिसके बारे में हम बात करें, विच इज़ अ बेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, दैट मटेरियल इज़ कॉल्ड सेमीकंडक्टर मटेरियल। सो वी विल स्टडी दैट काइंड ऑफ मटेरियल। तो मैंने आपको कुछ डेटा यहाँ पर बोर्ड पे ऑलरेडी लिख दिए थे, वो डेटा आप देख लो पहले। दैट मटेरियल बहुत सारे टाइप के मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में काइंड ऑफ मटेरियल बताए थे, लाइक अलॉय होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, सेमीकंडक्टर, मेटल, then conductor and insulator. That means you can take 5 kind of materials. First one is conductor, then semiconductor, then insulator, then electrolyte and then alloy. तो ये 5 kind के मटेरियल मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में बताए थे। आई विल प्रोवाइड द लिंक ऑफ दैट वीडियो, दैट होल प्लेलिस्ट इज़ देयर फॉर करंट इलेक्ट्रिसिटी, यू कैन वॉच दैट प्लेलिस्ट। सो यहाँ पर जो मटेरियल हैं उसमें हम उन 5 को नहीं, हम यहाँ पे 3 को डिस्कस कर रहे हैं, और 3 के बाद हम फर्दर एक में आ जाएंगे, दैट इज़ सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहले देखो तो मेटल जो होता है दैट इज़ अ कंडक्टर। कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होती है दैट इज़ वेरी लीस्ट 10 to the power -2, 10 to the power -8 की रेंज में होती है, एंड दैट रेजिस्टिविटी इज़ वेरी स्मॉल, वेरी माइन्यूट। क्यों? क्योंकि मेटल यानी कंडक्टर की अगर हम बात करते हैं तो कंडक्टर में होता क्या है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। द ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 इन पीरियोडिक टेबल, दैट टू मटेरियल्स आर कंडक्टर्स। ग्रुप नंबर 3 भी है, येस, दैट इज़ एल्यूमिनियम, जो ग्रुप नंबर 3 में आएगा। तो ग्रुप नंबर 3 में भी मेटल्स है, सेमी मेटल्स उन्हें कहा जाता है। तो इनमें जो मटेरियल्स हैं वो मेटल की क्वालिटी गेन करते हैं बिकॉज दे हैव आइदर 1, 2 or 3 valence electron. They can take participate in electricity by providing very small input of electricity. Clear? अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल की। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल, इनको अगर वर्ड को स्प्लिट करो तो सेमी मीन्स हाफ, कंडक्टर। सो सेमीकंडक्टर मटेरियल द रेजिस्टिविटी इज 10 to the power -5 to 10 to the power 6। अगर हम -5 को देखते हैं तो -5 से लेकर के -1 तक, यानी 10 to the power -2 है, फिर 10 to the power -1 आएगा, ठीक है। तो ये जो 10 to the power -1 तक अगर हम यहाँ पर देखें तो ये एक मेटल की तरीके से, यानी एक कंडक्टर की तरीके से बिहेव कर सकता है। बट इसके आगे जहाँ पर 10, 100, 1000 या 10 to the power 6 तक जाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। तो इसीलिए सेमीकंडक्टर वो मटेरियल हैं जो एक तरीके से कंडक्टर और इंसुलेटर की बीच की कैटेगरी को डिफाइन करते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी। अब मैं अभी मटेरियल बताऊंगी इसके बारे में तो आपको और आइडिया लगेगा कि व्हाट आर सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट वन इज़ इंसुलेटर। इनके बारे में तो हमें बात ही नहीं करनी होती है क्योंकि ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी नहीं पार्टिसिपेट कर सकते, दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस में भी दे कैनॉट पार्टिसिपेट, एंड दे कैनॉट पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रॉनिक्स, नो डाउट दे कैनॉट पार्टिसिपेट। तो insulators are the material that have resistivity 10 to the power 11 to 10 to the power 19 ohm meter. So this resistivity again is very high resistivity, and that means what? If resistivity is high, that means conductivity is low. Conductivity और resistivity एक दूसरे के reciprocal होते हैं. So sigma is equal to 1 over rho. Greater the rho, lesser the sigma.
तो कंडक्टिविटी लेस होती जाएगी जितना ज़्यादा रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी. सो दैट इज़ वाई दे आर रेसिप्रोकल एंड यू कैन आइडेंटिफाई दैट इंसुलेटर कैन नॉट टेक पार्टिसिपेट इन एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक्स. क्लियर है. तो मेटल तो हमें इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ होता है. अब मेटल्स कौन कौन से होते हैं, मैंने करेंट इलेक्ट्रिसिटी में भी आपको बताया था दैट जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट में पार्टिसिपेट करते हैं. एंड इन आवर हाउस द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स आर ट्यूबलाइट, फैन, बल्ब यू कैन टेक. ओके, सो ये जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, ट्यूबलाइट, फैन, बल्ब, ये सारी की सारी डिवाइसेस इलेक्ट्रिकल कंडक्शन यानी इनमें होता है एंड metals are required there. But if you are talking about the electronics, like in your house there must be an oven, microwave oven, there must be electronic television like LED, LCD or plasma TV, and you must have the electronic refrigerator. पहले electrical refrigerator आते थे, अब electronics refrigerator आते हैं. तो electronics refrigerator एंड योर इन्वर्टर, ये सारी की सारी डिवाइसेस आपकी क्या हो जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स. तो इसमें कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर यूज़ हो रहा होता है. सो सेमीकंडक्टर आर द बेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स. अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक्स को समझना है तो सेमीकंडक्टर को पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. व्हाट आर सेमीकंडक्टर. तो मेटल आर द बेस ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड सेमीकंडक्टर आर द बेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट. नाउ यू कैन सी सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर वो मटेरियल हैं जिनके आउटसाइड ऑर्बिट में, दैट मीन्स द आउटर ऑर्बिट विच इज़ कॉल्ड अ वैलेंस ऑर्बिट, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. दैट आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर. उनको नेमिंग भी इसी बेसिस पे दी गई है. आपको पता है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक, आप किसी भी ऑर्बिट में अगर देखो तो 2, 8, 8, 18 इस तरीके का ऑर्बिटल फिलिंग रूल्ड स्ट्रक्चर है ये. अफबाउ प्रिंसिपल एंड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल के बेसिस पर ऑर्बिट फिलिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की. तो अगर आप इसमें वर्किंग देखो तो यहाँ पर अगर 2, 8, 4 दैट मीन्स 2, 8 प्लस मीन्स 10, 10 + 4 14. तो 14 एटॉमिक नंबर एटम की अगर हम बात करें विच इज़ कॉल्ड सिलिकॉन. सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14. सो 14 की अगर हम बात करेंगे तो 14 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट में आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. सो 4 इलेक्ट्रॉन्स का मीनिंग है नाइदर दे कैन प्रोवाइड द इलेक्ट्रॉन टू एक्सटर्नल एटम्स नॉर दे कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एक्सटर्नल एटम. सो दे विल फॉर्म covalent bonding. Here there is somewhat chemistry. You know there are 3 kind of bonding. One is electrovalent, second is covalent, and third is coordinate bonding. So if you are talking about the electrovalent bonding, so it generally held in metals where there is donation of 1 electrons from the metal to gases like chlorine. NaCl अगर हम बना रहे हैं तो Na एक इलेक्ट्रॉन देगा इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू और वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन डैश कर लेगा बिकॉज क्लोरीन आउटरमोस्ट शेल हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो इट नीड 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. तो ये सारा जो बॉन्डिंग स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट. सो इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट दैट मीन्स they need 4 more electron to complete its octet. So what they do? They will form a covalent bonding among the same kind of elements. Like silicon may form covalent bonding with another silicon atom which further has the 4 valence electron, and the 4 valence electron bound with each other with the covalent bonding, and they can share the 4 electrons in the covalent bonding and they can complete the octet. So to complete the octet they need the covalent bonding, and because there are the 4 electron and they need 4 electron to complete the octets, that is why they may call as semi, means half conductor. तो एक तो आपको मैंने रेजिस्टिविटी की बेसिस पे बताया, दूसरा मैंने आपको ऑक्टेट आउटर मोस्ट वैलेंस शेल जिसे हम वैलेंस शेल कहते हैं, वैलेंस शेल के बेसिस से बताया दैट दे कैरीज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट जर्मेनियम, सो जर्मेनियम एटॉमिक नंबर इज 32. अगेन इफ यू वांट टू कंप्लीट 32 दैट मीन्स 2, 8, 18, like here this is 28, 28 plus 4 is 32. So 2, 8, 18 and 4 outermost shell again carries the 4 valence electron. So 4 valence electron means what? If it want to complete its octet, that means it need to form
a covalent bonding with another germanium atom. So this is the kind of bonding they may form, and that is why they are found in the form of crystal. So there is a silicon crystal, germanium crystal. Okay, these are these elementary particles, elementary atoms, and these are called element. So elements are found in crystal structure. Is it clear? So if it is crystal structure, then they carry so many electrons in a very regular structure, regular array. Electrons as well as all the atoms in the crystal arrange in a regular array, and we can, by providing some external thermal energy or electrical energy, or you can say it as a field energy or photoelectric energy. I told you in my the last lecture was on the photoelectric effect. So from the photo energy, means the light energy, they may change their structure and they can participate in electricity. So by providing some small input of any kind of field, like the electric field or thermal field or radiation field, we can change these atoms, these elements into a very good conductor. So that is the base that we can convert a semiconductor into conductor. This point is clear. This is the base. Now, not only silicon and germanium are present as a semiconductor, there are some kind of inorganic compound and organic compound. They are found in as a semiconductor. Okay, one is cadmium sulfide, CD, cadmium S sulfide, cadmium sulfide, gallium arsenide, indium phosphide, afterward anthracene. So these are the inorganic and organic material. They are found as a semiconductor and they can participate in electronics. Now जो प्लाज्मा होता है वहाँ जनरली कंपाउंड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है. ये जो एलईडी है दैट इज लाइट इमिटिंग डायोड एंड एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में भी जनरली आपका कंपाउंड स्ट्रक्चर होता है. तो ये जो कंपाउंड स्ट्रक्चर है, मैंने सेमीकंडक्टर की कैटेगरी आपको बताई है. वन इज़ द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर, सेकेंड इज़ द इनऑर्गेनिक कंपाउंड स्ट्रक्चर, थर्ड इज़ द ऑर्गेनिक कंपाउंड स्ट्रक्चर. तो ये तीन टाइप के सेमीकंडक्टर प्रेजेंट हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जिनके बेसिक क्वालिटी के बेसिस पर, कैटेगरी के बेसिस पर हम डिफरेंट काइंड के इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस को बना सकते हैं. नाउ सेमीकंडक्टर क्रिस्टल स्ट्रक्चर. तो क्रिस्टल फॉर्म में जनरली सेमीकंडक्टर प्रेजेंट होता है और उसके बाद हम इसे बैंड फॉर्म में अपने कंफर्ट बेसिस पर इसको बैंड फॉर्म इसका बनाते हैं, ठीक है. बैंड फॉर्म नेचुरली प्रेजेंट नहीं, नेचुरली प्रेजेंट स्ट्रक्चर इज़ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, बट द बैंड स्ट्रक्चर इज़ ऑन द बेसिस ऑफ आर थ्योरी. और उस बैंड स्ट्रक्चर के बेसिस पर ही हम सेमीकंडक्टर की बाकी क्वालिटी को डिफाइन करते हैं एंड वी विल जस्ट फॉर्म द अप्लायंसेस बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स. तो सबसे पहले हम जो नेचुरली फाउंड स्ट्रक्चर है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, वी विल डिस्कस अबाउट दैट. सो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में मैंने आपको जैसे बताया सिलिकॉन आप ले सकते हो और जर्मेनियम ले सकते हो. ऑलवेज रिमेंबर दिस इज़ द मोस्टली यूज्ड सेमीकंडक्टर एलिमेंट. सो सिलिकॉन क्या होता है एटॉमिक नंबर दैट इज़ 14 एंड जर्मेनियम एटॉमिक नंबर इज़ 32. ऑब्वियसली 14 इज़ कन्वर्टेड इनटू 284. ओके, 2 8 10 10 plus 4 14 and 32 is 2 8 18 4. So again it is converted into 32. तो ये स्ट्रक्चर होता है दैट मीन्स आउटर मोस्ट शेल which is called a valence shell. इन्हीं से हमें मतलब है that they carries 4 electrons. They carries 4 valence electrons. So if I'm talking about silicon, so silicon में आप इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाते हो कि 1 सर्किल and the 4 valence electron at the outer of the circle. Okay, now you will take another silicon here, then the 4 electrons corresponding to this silicon atom. Again you can take another silicon. In this manner you can take many silicon and corresponding 4 valence electron.
Okay, now what will happen, because it is a crystal structure and in crystal all the atoms are found here close by to each other, then you can see here they are forming the covalent bonding between every neighbor silicon atom. ओके, तो इस तरीके से आप देखो, अगर किसी भी एक सिलिकॉन को देखोगे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। यू कैन सी हियर कि मैं इस सिलिकॉन को लेती हूँ, इस सिलिकॉन में देखो आपका द 2 इलेक्ट्रॉन्स, पहले कितने थे 4 इलेक्ट्रॉन्स ये थे, 1 इलेक्ट्रॉन और मिल गया शेयरिंग से, सो इट बिकम द 4 आफ्टर 4 5, देन 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग 6, 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग 7 एंड 1 इलेक्ट्रॉन डाउन शेयरिंग 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स इस सिलिकॉन एटम के कंप्लीट हो गए। उसी तरीके से अगर आप इसको देखोगे तो 4 ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, आफ्टरवर्ड 5 6 7 एंड हियर द शेयरिंग इलेक्ट्रॉन 8। इसके ऊपर भी यहाँ पर स्ट्रक्चर जा रहा होगा। तो व्हाट इज क्रिस्टल? फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिस्टल इज द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, okay, and they generally form the covalent bonding. तो covalent bonding as compared to electrovalent bonding if you are talking, so covalent bonding is weaker. तो इसमें क्या होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ऑब्वियसली क्रिस्टल आपको पता है, अगर आप सॉल्ट लो, सॉल्ट क्रिस्टल फॉर्म में होता है, उसको आप ऐसे हैंड से रब करो तो उसके सारे पार्टिकल्स अलग अलग हो जाते हैं। सो दैट इज़ द नेचर ऑफ क्रिस्टल, मीन्स कि क्रिस्टल को जनरली ब्रेक किया जा सकता है उसके एटम्स में, उसके स्मॉलर पार्टिकल्स में, बाई अप्लाइंग सम स्मॉल फोर्स। सो दैट इज़ अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर हियर बिकॉज ऑफ द वीक कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो यहाँ पर वीक कोवेलेंट बॉन्डिंग है सिलिकॉन्स में, सिलिकॉन एटम्स में, एंड दैट इज़ वाई दे कैन ब्रेक ईजिली। गॉट माई पॉइंट? आफ्टरवर्ड इफ in the same manner we can arrange the crystal structure of germanium. जर्मेनियम में आप क्या करोगे, जर्मेनियम 32 होता है, आउटर मोस्ट शेल से केवल मतलब होता है, इनर ऑर्बिट वी डोंट टेक। सो जर्मेनियम ये आगे जो आपका ये अनफिल्ड रह जाता है, ये इसको शो करता है कि ये कॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर है, इसके आगे भी है, बट आप इतना तो नहीं बनाओगे ना। यहाँ मैंने देखिए कंपैरिजन एज कम्पेयर टू दिस सिलिकॉन आइटम आई हैव मेड द लार्जर स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ जर्मेनियम। तो यहाँ पर अगर आप सेंटर वाले जर्मेनियम को देखोगे देन इट कैरीज द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड नाउ यू कैन सी 5 6 7 8 बाय शेयरिंग द 4 more electrons it can complete its octet. So in the similar manner all the germanium atoms can complete its octet. तो इसमें यहाँ पर covalent bonding बन रही है. Remember this thing that every kind of semiconductor crystal structure form covalent bonding. First important point to note down. Second one, the silicon atomic number is 14 and the germanium atomic number is 32. Remember this important thing that क्योंकि यही दो most demanding होते हैं. आपने सिलिकॉन चिप सुनी होगी नेम विच इज़ यूज्ड इन कंप्यूटर. सिलिकॉन चिप होती, कंप्यूटर हो या कोई भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो, उसमें हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में एक चिप यूज़ होती है और उस चिप को सिलिकॉन चिप कहा जाता है. तो वो सिलिकॉन से मिलकर के बनी होती है, मोनोलिथिक स्ट्रक्चर होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है वो, और वो पूरा का पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर में ही इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनाए जाते हैं जिसमें डायोड भी होता है, ट्रांजिस्टर भी होता है, बाकी एडवांस फिल्टर सर्किट्स भी होते हैं. तो ये जितने भी डिवाइसेस हैं, इसका बेस जो आपका स्टार्ट हुआ है उसको आप वन बाय वन अच्छे से आपने
क्लियर करते जाने हैं एवरी कॉन्सेप्ट। तो आज के कॉन्सेप्ट में सेमीकंडक्टर मटेरियल के रिगार्डिंग में जो मैं 2 पॉइंट मैंने आपको बताए, वन इज़ covalent bonding in between the crystal structure of semiconductor material like the silicon and germanium, and the second one, the most demanding material semiconductor materials are silicon and germanium having atomic number 14 and 32 respectively। अब इसके आगे मैं इसका बैंड स्ट्रक्चर बताऊंगी इन माय नेक्स्ट लेक्चर। सो just go through with the video, revise it again and again, and clear the concept and relate it with the appliances present near to you. Okay, so thank you for today. Next I will come with the new theory, that is the band theory of the same semiconductor material. This one is the structure on the basis of crystal theory. Thank you.